So we are back in Shakahari Farms after Dudhsagar. We are just here just to visit. काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, स्पाइसेस है यहाँ पे, एनिमल्स, हाथी भी है, लाइक या दे आर सो मेनी थिंग्स. इट्स अ शाकाहारी farm that is in Ponta, Goa. So we are in Ponta, Goa. Let's go and let's see how it looks like. Let me just show you how it looks like from outside. So yeah. How much? 400. For three? 400 Two? rupees per person. 400 per person. Okay. Yeah. Of course, yeah. And then, what are the other things that we can do inside? Guided tour in the plantation and walk your lunch. Okay. For 400 per person. Okay, that's great. So that's included, right? Yeah, yeah. And this one is walk your lunch menu. It's green all over. So far, so good. So Rohan, how you feeling? So amazing. I can see elephant over there. No. We need to figure out Where is elephant. elephant? No. We have to check that out. We do have elephant. We do have elephant ride as well. So let's go and check that out. Where the elephant is. So yeah. I can see Pikachu. So stay tuned, guys. What is this? This is lemongrass. Lemon. Serve it on the table. Lemon. Sorry. Lemongrass tea. Okay. Lemongrass tea. Okay. Fine. But मैं अपना ले रही हूँ. So they charge 400 per person, that is including food and the guide as well. So they will just giving us the whole tour, spices farm का पूरा tour देंगे, and we'll be seeing, and I will be just showing you what exactly we can see or what exactly they do have. पूरा tour में मैं आपको साथ में ले चलूँगी, so stay tuned for that. Let's go. I'm starving right now. I'm damn hungry. So ये शाकाहारी में we do have included food as well. So we'll have some food and then we'll be taking tour for spices farm. So let's go. So let's go. We do have food as well in front of me. It's a veg. Let me just show you how it looks like. So yeah. The food looks okay. It's not that great. ठीक है, but that's completely fine. They are charging like 400 for this food. 400 for including everything. So we'll be getting food as well for this. So yeah, that's okay. That's fine. Let's have something. We do have non-veg as well. This is fish. This is veg. Lighting kachi. So we are done having our food. So we are just waiting for the guide for the spice farm ride walk. Spice farm walk. So yeah, let's wait for them and yeah, we'll see you then. So we are all set for a ride. Let's go. ये करता है इसमें से वन का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कवर करना है, उसके लिए 20 मैक्सिमम 25 मिनट्स लगते हैं। ओनर का नाम है माधव सहकारी। सहकारी इनका सरनेम है, कॉर्पोरेट इन्हें खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो
तो ये पेट के ऊपर आपको ग्रीन एंड रेड बेरीज दिख रही है, ऊपर लगे आप देख सकते हैं ग्रीन एंड रेड बेरी। कॉफ़ी बीन्स दिख रही है, कॉफ़ी अराबिका। कॉफ़ी Okay. 2 तरीके होती है, अराबिका एंड रोबस्टा। यहाँ पर हम कॉफ़ी अराबिका ग्रो करते हैं। फर्स्ट ग्रीन देन रेड। रेड को पील करेंगे, सीड्स को सुखाएंगे, रोस्ट करने के बाद उसका कॉफ़ी पाउडर बनाएगा। बिफोर रोस्टिंग अगर आप स्मेल करोगे कॉफ़ी का अरोमा नहीं आएगा, उसको कंपलसरी रोस्ट करना पड़ता है, तभी आपको कॉफ़ी का अरोमा मिलेगा। और एज कम्पेयर टू रोबस्टा जो है तो ये बहुत कॉमन स्पाइस है, आपको पता रहेगा, हर जगह होती है। टर्मरिक, हल्दी। Okay. अंडरग्राउंड रूट है, ज़मीन के अंदर होता है। मेरे को आज पता चला। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा, ये पूरा पौधा जो है ऊपर से सूख जाता है। तो ये सूखने से पहले अगर हल्दी को निकाला, वो इमेच्योर्ड रहती है। सूखने के बाद निकालना होता है, फिर आप उसको ये मैच्योर वाली आपके हाथ में है वो? दिस इज नॉट मैच्योर, ओके ओके पूरी येलो हो जाएगी। ओके। तो उसकी पाउडर आप एज एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं। खाना वगैरह में आप डालते हैं इसको यूनिवर्सल स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए अच्छी रहती है, फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। 2 पिंच हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून हनी मिक्स करके स्टार्टिंग के 2 दिनों में दिन में 2 बार देना है। और क्रैम्प, पत्तों को किसी भी स्वीट डिशेस में आप डाल सकते हैं। तो गोवा में इससे एक स्वीट डिश बनाई जाती है, पातोड़ी कहते हैं इसको, राइस के बैटर के साथ। तो वो बैटर पूरा इसके अंदर रैप करके स्टीम करते हैं। अदरवाइज फिश वगैरह खाते हो, फिश के ऊपर मसाला अप्लाई करना है, इसके अंदर रैप करके फ्राई करना है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वहाँ पे आपको जो एक बुश दिख रहा है, फाइन लॉन्ग ब्लेड्स जैसे, सामने ऊपर ठीक है, लेमन ग्रास जो चाय सर्व करते हैं यहाँ पर, लेमन ग्रास टी, लेमन ग्रास, कार्डमन, जिंजर, क्रश करके नॉर्मल पानी में बॉईल करना है। अगर आपको मीठा चाहिए थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं फॉर स्वीटनेस, दैट इज़ वेरी गुड फॉर माइग्रेन। ये फ्रेश वन, अदरवाइज आप ड्राइड लीफ भी ले सकते हैं लेमन ग्रास। तो ये आपको लाइन में ये बुशेस जो दिख रहे हैं, आपने पहले कभी देखा है? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मसाला होगा। जैसे तेज पत्ता, नहीं, तेज पत्ता छोटा होता है। तो ये है इलायची, ब्लैक कार्डमम। इलायची 2 तरह की होती है, ब्लैक एंड ग्रीन। नॉर्मली हम ग्रीन यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी इलायची है, ऊपर लगा आप देख सकते हैं। इस बुश के ऊपर देखिए ऑरेंज कलर का छोटा सा फ्रूट इसके ऊपर, अदरवाइज आगे आपको दिखेगा ऊपर। तो बड़ी इलायची जो आगे मिलेगा, बड़ी इलायची जो है वो ऊपर लगती है, छोटी इलायची शूट के ऊपर। दोनों के बुशेस अलग रहते हैं। तो अभी इसका सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। छोटी इलायची का बुश छोटा रहता है, लाइट कलर का रहता है। इलायची जो है वो 3rd एक्सपेंसिव स्पाइस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक जो बुश है मैक्सिमम सीजन में आपको 30 to 40 ग्राम्स देता है। एक बुश से सिर्फ 30 या 40 ग्राम, इसलिए तीसरा महंगा मसाला है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस बिकॉज मीठी होती है और गुड एज एंटी डिप्रेशन और माइग्रेन के लिए अच्छी होती है। What is this? चिल्ली। ओह, वो एकदम छोटी वाली है ना? छोटी इलायची है? नो, चिली है। छोटी इलायची का सीजन नहीं है अभी, ये ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन जूम में तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा है, यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन रेड छोटी छोटी चिलीज है। देखिए ये वाली छोटी सी क्या चीज़ है? मिर्च है, मिर्च तोड़ना नहीं है। ना तोड़ना तो ये पेरी पेरी सुना होगा आपने? पेरी पेरी सॉस मिलता है मार्केट में, पेरी पेरी चिकन नूडल्स पेरी पेरी है। तो इसको लोकल लैंग्वेज हमारे यहाँ तारवटी कहती है, मराठीज इसको लवंगी मिर्ची भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है, ये सन के डायरेक्शन में उगती है। नॉर्मल चिली झुकी हुई रहती है, बट ये इसकी मैक्सिमम साइज है कि दिस इज रॉ, दिस इज मैच्योर्ड वन। बस मैक्सिमम इतना बढ़ेगी, बट ये बाकी चिली से 2800 टाइम्स स्पाइसी होती है। इसको डायरेक्टली नहीं खाना है। आपने पापड़ ट्राई किया था बफे में? मैंने सिर्फ पापड़ खाए हैं। ओके, Ask तो me. उसमें पेरी पेरी चिली डाली हुई है। पैसे मिलेंगे बाकी। तो इसको अगर ट्राई करना है तो इसको
ड्राई करके यूज़ करते हैं, डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करते, पर यहाँ पे लोग इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनली अफ्रीका से है, बट इंट्रोड्यूस इसको पोर्तुगीज़ लोगों ने किया, इसलिए पोर्तुगाली भी कहा जाता है। पोर्तुगाली और पेरी पेरी और फायर फायर। इसी सुपारी क्या है? Oh, is it? सुपारी। यहाँ पे जो लंबे लंबे पाम्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले पूरे स्ट्रेट लॉन्ग पाम्स, सुपारी, बीटल नट और आरिका नट। ऊपर लगे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रीन देन ऑरेंज। तो सुपारी को निकालने की भी एक टेक्निक होती है, तो इसके लिए क्लाइंबर होता है। तो क्लाइंबर जो है वो हर एक पाम के ऊपर से नहीं चढ़ता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक पाम के ऊपर चढ़कर बंच काट के नीचे फेंकता है, और पाम ऊपर से बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो पाम को बैंड करके एक से दूसरे पे चला जाता है लाइक अ मंकी। तो ये इसकी टेक्निक है। अदरवाइज आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं सहकारी स्पाइस फार्म का वीडियो, जो सुपारी निकालते हैं, तो उसके ऊपर अवेलेबल रहेगा। इसको इंडिया का लीगल ड्रग भी माना जाता है, क्योंकि कच्ची जो सुपारी है वो आप कह सकते हैं 30 ml इक्वल टू 30 ml ऑफ विस्की। कच्चा नट खाने से सिर घूमने लगता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रग होता है एरेकलीन नाम का। तो इसको एक पूरा खाने से सिर थोड़ा घूमने लगता है, ड्राउजीनेस फील होता है। सूखी डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, बट ओनली ड्राइड नट, टोबैको के साथ नहीं, क्योंकि वो हार्मफुल रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये रिंग्स है, इसी सब की इसकी आप एज काउंट कर सकते हैं। तो साल में इसको 3 रिंग्स आते हैं। सो 1 2 तो ये क्या 200 साल का है? 1 ईयर नो 45 ईयर्स तक लाइफ रहती है इसकी, मतलब 45 ईयर्स तक आपको सुपारी मिलेगा। सो 1 2 3 1 ईयर। कोकोनट का 1 2 3 4 1 ईयर। तो इसकी एज भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आफ्टर 7-8 ईयर्स आपको सुपारी मिलेगी टिल 45 ईयर्स। कोकोनट का टिल 80 ईयर्स तक रहता है। Smell this one. Smell it and pass please. जैसे ये जो पेड़ है यहाँ पे लाइन में आप देख सकते हैं। बहुत फेमिलियर स्मेल है, बट आई डोंट नो। यानी कैसे? इलायची लौंग वगैरह दालचीनी का है। ये नहीं ऑल स्पाइस है। ऑल स्पाइस बताया आपको? ऑल स्पाइस मतलब आंटीज को नहीं पता है, सो वी डोंट नो। गरम मसाला जो आप बनाते हैं वो ब्लेंडेड रहता है, अलग अलग मसालों को इकट्ठा करके ब्लेंड करके बनाया जाता है। तो ये 5 तरह के गरम मसालों का स्मेल आपको इसके अंदर अरोमा मिलेगा। इसके अंदर 5 in 1 है, इसका नाम है ऑल स्पाइस। लौंग, इलायची, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च एक पेट के अंदर। बेरी आती है इन अ मंथ ऑफ मे। तो अभी फिलहाल सिर्फ ब्लैक पेपर एंड नटमेग का सीज़न जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसका सीज़न मंथ ऑफ मे। पेपर की तरह होती है, बट थोड़ा बड़ा साइज़ का रहता है। तो उसको ब्राउन होने के बाद निकाल कर सुखा कर पाउडर बनाई जाती है। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। तो पाउडर बनाई जाती है। पाउडर को आप डायरेक्टली खाने में यूज़ कर सकते हैं एज अ गरम मसाला। और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसके पत्तों को तेज पत्ता के जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तेज पत्ता हम सुखा कर डालते हैं, इसके पत्तों को कच्चा डालना है। तो ये ओरिजिनल नहीं, तेज पत्ता अलग होता है। ओरिजिनली जमाइका से है, ओरिजिनली जमाइका से है। इसका नाम है जमाइका पेपर, और इंडिया में इसको ऑल स्पाइस या फिर सर्व सुगंधी भी कहा जाता है। Smell this and pass here. And this look like तेजपत्ता। ये क्या है? यहाँ पे स्मेल तेज ये पत्ता, तो वही है, शेप में भी वही है। दालचीनी का पेड़ है ये वाला। तो दालचीनी पेड़ की छाल होती है, बार्क होती है। इसको रेडी होने में पूरे 15 साल लगती है। 15 साल के बाद पेड़ को हम आधा कट करते हैं, आधा हिस्सा न्यू ग्रोथ के रखते हैं। तो अगले 15 साल में फ्रेश दालचीनी मिलेगी। जो काटा हुआ हिस्सा होता है उससे दालचीनी को पील करके सेपरेट करते हैं। सुखाने के बाद आपको एज अ स्टिक मार्केट में अवेलेबल मिलती है। छाल निकालने के बाद स्टेम से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिनेमन ऑयल वो जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा रहता है, बट ऑयल को डायरेक्टली ऐसे बॉडी पर अप्लाई नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मिक्स विथ एनी वेज ऑयल। इसकी 2 ड्रॉप्स और कोकोनट ऑयल 10 ड्रॉप मिक्स करके मसाज करना है सोने से पहले।
पत्ता इसका तेज पत्ता, तमाल पत्र, बे लीफ जो पुलाव बिरयानी में डालते हैं। तो एक ही पेड़ से आपको 2 तरह के मसाले मिलते हैं, एक है तेज पत्ता, एक है दालचीनी और ऑयल 2, 3 in 1 है। फेनी के बारे में सुना है, काजू फेनी और कैशू फेनी गोवा का फेमस अल्कोहल है, यहाँ पे बनाया जाता है। काजू का सीज़न आपको पता रहेगा, मार्च अप्रैल मई 3 मंथ सीजन, गर्मी का मौसम। तो अभी सीजन नहीं है, इसलिए ये बीच में आर्टिफिशियल सोप है इन अ शेप ऑफ कैशू फ्रूट। ये इस ऊपर फ्रूट नीचे नट, ओनली फ्रूट है पूरे वर्ल्ड में जिसका नट फ्रूट के बाहर होता है। फेनी जो है अल्कोहल फ्रूट से बनता है, नट से नहीं बनता। तो फ्रूट और नट को सेपरेट करते हैं, रेडी होने के बाद, फ्रूट मैच्योर होने के बाद सिर्फ फ्रूटों को क्रशर में डालकर जूस निकालेंगे। जूस को फर्मेंट करते हैं 4-5 दिनों के लिए, फिर फर्मेंटेड जूस को वहाँ ज़िगज़ैग फॉर्म में जो आपको बेल दिख रही है, उसको टच नहीं करना है, ऐसे देखिए यहाँ पर ज़िगज़ैग पे। ये दुनिया का सेकंड एक्सपेंसिव स्पाइस है, वनीला आइसक्रीम खाते हैं सब लोग। तो वनीला इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। पहला है केसर, वो हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइमेट सूट नहीं करता। दूसरा वनीला, तो ऐसी ही रहती है इन अ ज़िगज़ैग फॉर्म। इसको आप क्रीपर नहीं कह सकते, इट्स एन ऑर्किड। तो इसको लगाने के बाद पूरे 3 से 4 साल लगते हैं इसका पहला फ्लावर देने में, फिर 9 मंथ्स लगते हैं इसके बीन्स रेडी होने में। तो ये दूसरा महंगा मसाला इसलिए है क्योंकि जो इसका पॉड जो है, जो इसका फ्रूट जो है, वो 30,000 स्पॉट्स मिला के सिर्फ आपको 1 लीटर ऑयल मिलेगा। तो इसलिए ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है। अगर आपको नेचुरल वनीला खरीदना है, प्योर वनीला खरीदना है, तो 7 to 8 लाख तक पड़ेगा पर लीटर।